In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, let's start our discussion without wasting any second. So, our first MCQ, let me make it a little bit clear. So, our first MCQ is initial symptoms. Initial symptoms of AIDS are option alpha, flu, option B, dementia, option C, weight loss, option delta, all. So the correct option was option alpha. Question number two. Virus is derived from Latin, Greek, poison, या none. So the correct option was Latin. Question number three is cell theory is not applied to viruses, plants, bacteria, monomerons. You need to remember, guys, cell theory is a theory. It's not law. It is not applicable on viruses because viruses are acellular entities. Next question is related to the same question. Viruses are in the borderline of living and non-living creatures due to ऑप्शन वन इज रेप्लिकेशन. डेफिनेटली वो रेप्लिकेट तो करते नहीं, वो करते हैं तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेप्लिकेट करते हैं. बीटा इज डिजीज कॉजिंग नेचर. डिजीज कॉजिंग नेचर तो फिर बैक्टीरिया की भी होती है. डिफरेंट फंजाई हैं वो पैरासाइटिक इन नेचर है. एनिमल किंगडम में बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट्स हैं. फिर इसी तरह चार्ली ऑप्शन है क्रिस्टलाइन फॉर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्रिस्टलाइन फॉर्म. व्हाई? Because viruses are crystalline in nature. That's what make them different. Question number 5. Viruses are called as obligatory intracellular parasite. Why? They have a protein coat and nucleic acid core. They cannot grow on artificial media. That's correct one. They cannot grow on artificial media. You need to remember this. This is very important question. ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है बार बार. Let's talk about next question. यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है. They lack biosynthetic machinery to replicate. और एंड पे ऑल का ऑप्शन भी है. ज्यादा बेहतर है बीटा वाला. Why? Because that's the definition of obligatory intracellular parasite. Question number 6. Capsid is made up of alpha is protein, beta is capsomers, Charlie is both, delta is none. Actually, capsid is made up of subunits which are capsomers और वो capsomers प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. तो यहाँ पे जो रिलायबल ऑप्शन है वो चार्ली है. Which of the following is characteristics of retrovirus? रेट्रोवायरस की characteristics क्या हैं? Single stranded, double stranded, replicate through reverse transcriptase. तो यहां पर जो आपकी करेक्ट ऑप्शन बनती है, यहाँ पे जो आपकी करेक्ट ऑप्शन बनती है वो बनती है ऑल ऑफ देम. ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं रेट्रोवायरस. क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑप्शन नंबर अल्फा इज जीनस, ऑप्शन नंबर बीटा इज फैमिली, ऑप्शन नंबर सी इज चार्लीज क्लास, डेल्टा इज नन. तो नन की बजाय यहाँ पे क्या आना था? स्पीशीज आना था. स्पीशीज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, वो बार बार पूछी जाती है एंट्री टेस्ट वगैरह में. इंपॉर्टेंट है वो इसी लिहाज से.
फिर क्वेश्चन नंबर 9 इज एड्स वायरस इज alpha is enveloped, beta is cuboidal in shape, Charlie is cuboidal in shape, beta is one RNA molecule, it contains one RNA molecule, delta is all. So it's not all or cuboidal in shape. Also, it is not even one RNA molecule. It is enveloped. इसका सिर्फ एक ही सही करेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है यहाँ पे. एड्स का वायरस सर्कुलर होता है इस तरह का, ठीक है. इसके इर्द गिर्द स्पाइक्स होती हैं इस तरह, जो कि मेम्ब्रेन को डिटेक्ट करती हैं जहां पे इसने अटैच होना होता है. फिर इसके एनवेलप के अंदर कैप्सिड होता है इसका इस तरह का. इसके अंदर आपके पास दो आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं. फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होता है. तो ये आपका एक छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एड्स के एक्सक्यूज मी एड्स के मॉलिक्यूल का. Let's discuss our question number 10, which is which of the following is not the symptom of AIDS. पूछा जा रहा है कि इनमें से एड्स का कौन सा सिम्टम नहीं है. अब यहाँ पे मैंने वायरोलॉजी में और एड्स से रिलेटेड पोर्शन में क्यों मैंने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि पेपर में आते ही यहीं से क्वेश्चन है ज्यादातर. सेकेंडली, लास्ट ईयर जब आपका एग्जाम हुआ था तो कोई खास क्वेश्चंस नहीं पूछे गए इस यूनिट में से. मेरे ख्याल से एक भी नहीं पूछा गया था लास्ट ईयर जो एनएमडी कैट हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ एड्स. पहला है इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी आपके इम्यून सिस्टम का खत्म हो जाना, डिफेंसलेस हो जाना आपका. बीटा इज फीवर, चार्ली इज कैंसर, डेल्टा इज नॉन. अच्छा, एड्स में देखा गया कि कैंसर भी हो जाता है पेशेंट्स को, आपको फीवर भी हो जाता है और इम्यूनो डेफिशिएंसी तो होती है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है. तो द करेक्ट आंसर वुड बी नन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज ऑप्शन अल्फा इज ब्लड, बीटा इज breastfeeding, Charlie is infected syringes, use of infected syringes, delta is all. So the correct option would be all, क्योंकि ये सारे जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बायस बन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 is T4 phages, circular, tadpole shaped, spiral, cubical. T4 फेज की डायग्राम आपकी बुक में भी ड्रॉ हुई है. वो टैडपोल शेप का होता है, उसका हेड इस तरह का होता है और यहाँ पे उसकी नेक रीजन होती है और यहाँ पे उसकी टेल होती है, फाइब्रस टेल्स होती हैं. फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्यूरेट नहीं बनाया, अपनी बुक को काइंडली रेफर कर लें. मेथड ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यहाँ से मैंने एक एमसीक्यू इसलिए पकड़ा ताकि आप किसी भी चीज़ को बिना रीड किए ना छोड़े. अल्फा इज टेक्सोनमी, टेक्सोनमी नहीं हो सकता, ये ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करने का तरीका है, वो ब्रांच है. हेराकी भी नहीं हो सकता सॉरी. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होगा बिकॉज इट इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बाय मीन्स टू, यानी एक नाम में जीनस आता है, दूसरी में क्या आता है, स्पीशी नेम आता है. जिस तरह हमारा जीनस नेम है होमो और हमारी स्पीशीज का क्या नेम है, सेपियंस. इसी तरह पिज्म सेटिवम, पिज्म क्या है, जीनस नेम है, सेटिवम क्या है, स्पीशीज नेम है. इस तरह के आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं पेपर्स में. वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा इज न्यूक्लिक एसिड, बीटा इज मॉर्फोलॉजी. यस डेफिनेटली इन दोनों की बेस पे हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाना था चार्ली, बोथ अल्फा एंड बीटा. क्वेश्चन नंबर 15 देखें. वायरस इज अ वायरल रिप्रोडक्टिव cycle that culminates in death of host cell is known as lysogenic, lytic, both, none. अब यहाँ पे उसने सीधी बात पूछी कि ये होस्ट सेल है बिल्फर्स. अब कौन सा ऐसा साइकिल होगा जिसमें वायरस इस होस्ट सेल की डेथ कोज करेगा, यानी बर्स्टिंग हो जाएगी, इसके डीएनए के साथ जाके शामिल नहीं होगा. तो डेफिनेटली आंसर वुड बी लाइटिक. अगर डीएनए में जाके मर्ज हो जाता है तो वो
लाइसोजेनिक साइकिल होता है, उसमें अचानक से होस्ट के सेल की डेथ नहीं होती, यानी वो बर्स्ट नहीं करता। लाइटिक साइकिल में सेल जो होता है वो बर्स्ट करता है। आपके एमसीक्यूज मैंने थोड़े लिमिटेड बनाए थे क्योंकि आप ऑलरेडी एक टेस्ट सोल्व कर चुके हैं और मेरे साथ टाइम के भी थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आगा खान वगैरह की सीरीज को कंटिन्यू किया जाए तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें और ताकि मेरे किए हुए वर्क को अप्रिशिएट किया जा सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर NMD CAT एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।